A very warm greetings from Happiness Institute. Akasha Tomar this side, and today we will understand that is there any difference between daily routine and past routine? Yes, there is a difference. When it comes to daily routine, what does it mean? It means you have 24 hours in a day and you do specific activities in those 24 hours. When you start doing those activities repeatedly, that is considered as your routine. But what does mean by past routine? Past routine से क्या मतलब है? Past routine या past की कोई habits, जैसे कि अगर आप ये बताना चाहें कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं हॉस्टल में रहा करता था। हॉस्टल में जब रहा करता था तो मैं जल्दी उठा करता था, मैं अपने सारे काम खुद किया करता था। अब ये वाली चीज आप कैसे बताएंगे? ये तो अब आपके करंट लाइफ का पार्ट नहीं है, ये तो चीज आपकी खत्म हो गई है। आप जल्दी उठा करते थे, ये आपको हैबिट थी, ये पास्ट की हैबिट थी, ये अब आपकी प्रेजेंट की हैबिट नहीं है। सो हाउ टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, पास्ट रूटीन, कैसे बताएंगे? सो we have a specific term for it. What is that? That is used to. Used to. Yes, this is the term which is used to express your past habits and past activities which used to take place. जब पहले आप कोई काम किया करते थे या आपका कोई पास्ट का रूटीन था, तो पास्ट का रूटीन हम कैसे बताते हैं? उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इफ आई वांट टू टॉक अबाउट योर प्रेजेंट रूटीन, अगर आपको प्रेजेंट का रूटीन बताना है तो व्हाट यू फॉलो? यू सिंपली फॉलो दिस फॉर्मेशन, दैट फर्स्ट यू प्लेस सब्जेक्ट, as per the subject you place your verb, and then you tell your routine. For example, I wake up early in the morning, then I get fresh, then I go for a walk, then I come back and have my breakfast, then I get ready for my office, then I leave my home. After that, I reach at my workplace and start working. This is how you explain. Means you are using all your first form. I wake up, I go for a walk, I have my breakfast, I go to my workplace. All the forms are first form. And with plural, along with the plural subjects, we are supposed to use only first form. If I talk about my mother's routine, my subject becomes singular. If I say my mother, then you will use fifth form. My mother wakes up early in the morning. She prepares, then you will use pronoun. She cooks food. She washes utensils or dishes, you can say. So see, you are using fifth form. And when your subject is I, then you say I go to work. I go to work. I do work. I go to my workplace. I do gym. Like this. The formation is this. First you are placing your subject, then your verb, then your object. But what if you have to express your past routine, your past habits? How to express that? So today we will learn about it. You need to use used to. Used to is already itself a past term. It is the second form. So you don't need to use any another second form again in the sentences. Apart from it, you can see the preposition is there, to. So after to preposition, generally we place base verb. Base verb means verb's first form. So what is the formation? Subject, then you have to place used to, then first form. Reason? Because after preposition we have to place first form only. Then your object. For example, I want to say, मैं पहले फुटबॉल खेला करती थी. अब मैं इस चीज को कैसे बोलूं? मैं पहले फुटबॉल खेला करती थी. सो हाउ टू से दिस? सब्जेक्ट क्या है? आई. खेला करती थी पास्ट की हैबिट है, पास्ट का रूटीन है. वो किससे एक्सप्रेस होता है? यूज्ड टू से. आई यूज्ड टू, फर्स्ट फॉर्म प्ले. क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फुटबॉल. I used to play football
इसका मतलब मैं पहले खेला करती थी. Suppose if I say I play football, what does it mean? That now you play. ये आपकी करंट एक्टिविटी है, आपका अभी का रूटीन है. No, it is your daily routine and this is your past routine. This is your past routine. I used to play football. सिर्फ एक इस टर्म से आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. I used to play football. पहले खेला करती थी. It means now you don't play anymore. If you write I play football, it means now still you play. तो दोनों sentences में huge difference है. And just because of this simple term, एक सिर्फ इस term की वजह से, you can see your entire meaning has got changed. Let's have more examples of past routine. If I want to say, मेरी मम्मी पहले खाना बहुत अच्छा बनाया करती थी. हम कहते हैं, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं मम्मी आप पहले खाना अच्छा बनाया करती थी. So what would you say? My mother or my mom. See, in this case, when you talk about past routine, there is no singular plural concept in the subject. All the subjects are considered commonly. आप सब सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे. My mom used to cook delicious food. इसका मतलब क्या है? My mom used to cook delicious food. मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाया करती थी. It means अब थोड़ा सा टेस्ट खराब हो गया है. Now she doesn't cook delicious food anymore. वो कहते हैं ना, मम्मी कहती है I am aging. Can't you understand this? I am aging. Just because of that reason, I am not able to cook as much delicious food as I used to. जैसे मैं पहले बनाया करती थी. Let's have another example. For example, you want to say that कि जब मैं अपने स्कूल में था, मैं बहुत पढ़ाकू हुआ करता था. इसका मतलब जब हम कहते हैं ना यार अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, बट जब मैं स्कूल में था तब मैं बहुत पढ़ाकू हुआ करता था. अब वो क्या आ गया? आपका पर्सनालिटी, अ ट्रेट, अ नेचर. उस नेचर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यहाँ पे तो आपकी वर्ब है, you are placing your verb directly. But when you talk about personality, what would you say? I used to be. Be means क्या होता है? Be means होता है होना. I used to be studious. Studious means पढ़ाकू. I used to be studious. Now you can place any personality here. I used to be an arrogant person. I used to be rude. Anything. I used to be sagacious. Sagacious means intelligent. I used to be sagacious. मैं समझदार हुआ करता था. My friend या रोहन used to be fat. रोहन पहले मोटा हुआ करता था. It means now he is fit or he is slim. अब मोटा नहीं है. Now he is slim. वो पहले हुआ करता था. So whenever you want to talk about any trait, any nature, personality, you need to place be first. Be means होना. मेरी सिस्टर पहले घर पे ही रहा करती थी. My sister used to be at home only. मेरी सिस्टर पहले सिर्फ घर पे ही रहा करती थी. My sister used to be. Be मतलब होना. कहाँ? घर पे. घर से पहले हम क्या लगाएंगे? preposition. किसी स्पेसिफिक जगह पर होना. My sister used to be at home only. घर पर ही रहा करती थी. Now, these are all your affirmative sentences. This is the formation of your affirmative. Affirmative means simple sentences, declarative sentence, in which you convey something, you tell something, you provide some information. They are called affirmative. Affirmative sentences. Next, let's move to negative category. Negative type of sentences. What do you think? What should be the formation for negative sentences? As I told you, used itself a second form. अपने आप में ही second form है. तो सबसे पहले आप क्या place करेंगे? You will place subject, and then after that, to make negative, we have to use not
एंड नॉट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन. एज यू नो, आपका नॉट जो टर्म है वो कभी भी अकेला नहीं आ सकता है, उसके साथ हमेशा क्या चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब टू सपोर्ट दैट वर्ड. सो हेयर विच हेल्पिंग वर्ब विल वी कैन यूज, यूज्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड. तो अगर आप पास्ट इंडेफिनिट को थोड़ा सा रिकॉल करें तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट, डिडंट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली यहां भी आपका वो ही फॉर्मेशन जाएगा. सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव है और पास्ट को बता रहा है तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड. देन नॉट, फिर क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म. अब हमें पास्ट एक्टिविटी बतानी है, यूज टू से ही बता सकते हैं पास्ट एक्टिविटी, तो यूज्ड की अब कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट, बिकॉज आपका डिड आ गया है और डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. देन योर फॉर्मेशन विल बी यूज टू एंड आफ्टर टू. आपको पता है हमेशा टू के बाद कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म जनरली. एंड देन प्लेस योर ऑब्जेक्ट. नाउ look at some examples. If I say I didn't used to wear western dress. मैं पहले western dresses नहीं पहना करती थी, मतलब पहले नहीं पहना करती थी, वो आदत अब खत्म हो गई है. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ऐसे. सब्जेक्ट क्या है, I didn't used to, फर्स्ट फॉर्म, wear western dresses. मैं पहले वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहना करती थी. आई डिडंट यूज टू वेस्टर्न ड्रेसेस. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव और वी कैन टेक माई फ्रेंड डिडंट यूज टू इनवाइट मी. मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे को पहले इनवाइट नहीं किया करती थी कहीं किसी भी चीज के लिए, पार्टीज के लिए या अपने घर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी फंक्शन के लिए. शी डिडंट यूज टू इनवाइट मी, इट मीन्स नाउ शी इनवाइट्स मी, क्योंकि वो पास्ट की हैबिट है, पहले इनवाइट नहीं किया करती थी बट नाउ शी इनवाइट्स मी, अब वो मेरे को इनवाइट करती है. सिमिलरली यहाँ पे आप जैसे वर्ब यूज कर रहे हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह आपको यहाँ पे कोई ट्रेट यूज करना है, जैसे मेरे को अगर ऐसे बोलना हो, मैं पहले रूड नहीं हुआ करती थी, या वो वाली आंटी वो पहले तो रूड नहीं हुआ करती थी, पहले तो बहुत हम्बल थी, अब पता नहीं उनको क्या हो गया है, अब बड़ी गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, अनॉयड रहती हैं. तो पहले तो रूड नहीं हुआ करती थी, हाउ वुड यू से, माय आंट डिडंट यूज्ड टू बी रूड. पहले तो वो रूड नहीं हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू से दैट नेहा didn't used to be courageous enough. नेहा didn't used to be courageous enough. पहले तो वो इतनी bold, इतनी courageous नहीं हुआ करती थी. Now it means she is courageous enough. अब वो अच्छी है, bold है, strong है, पहले नहीं हुआ करती थी. जैसे कि आप बहुत बार कहते हैं, I used to be an introvert person, but now these days I am trying to open up with people. मैं पहले इंट्रोवर्ट हुआ करता था बट इन दोनों में मैं अपने आप को लोगों के साथ ओपन करने का ट्राई करता हूँ, पहले हुआ करता था. सो दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस. इफ आई स्विच टू इंटेरोगेटिव कैटेगरी, अब अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे, इसमें आप वी हैव टू कैटेगरीज, जिसमें आप कुछ पूछते हैं, यस नो टाइप एंड एक्सप्लेनेटरी, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन देते हैं. यस नो टाइप में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करते हैं. सो व्हाट वुड बी द फॉर्मेशन फॉर दैट, फर्स्ट यू हैव टू प्लेस हेल्पिंग वर्ब. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड. देन यू नीड टू प्लेस सब्जेक्ट. अगेन आपको यूज टू, पास्ट की हैबिट दिखानी है, सो आपको यूज टू बिल्कुल नहीं भूलना है. समटाइम्स यू फॉरगेट टू प्लेस यूज टू, और समटाइम यू फॉरगेट टू प्लेस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आफ्टर यूज टू. ये दोनों बातों का खास ध्यान रखना है, ये चीज आपको नहीं भूलनी है. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप पहले बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, तो ये चीज मैं कैसे पूछूंगी, क्या आप पहले बहुत स्मार्ट हुआ करते थे. सो आई विल आस्क यू, डिड यू यूज टू बी वेरी स्मार्ट. अब मैं यहाँ पे कुछ भी पूछ सकती हूँ. डिड यू यूज टू बी एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन,
Did you used to be philanthropist? Anything, any personality I can place here. Did you used to be kind-hearted? क्या आप पहले kind-hearted हुआ करते थे? Did you used to be trainer? क्या आप पहले trainer हुआ करते थे? Like that. अगर मुझे कोई action पूछना हो, यहाँ पे action डालना हो, क्या आप पहले exercise किया करते थे? क्या आप पहले सेशंस कंडक्ट किया करते थे? हाउ वुड आई आस्क? या क्या आकांक्षा मैम सेशंस कंडक्ट किया करती थी? सो डिड आकांक्षा मैम यूज्ड टू कंडक्ट सेशंस? यूज्ड टू से आपको अपने आप मीनिंग पता चल जाएगा कि पास्ट के बारे में बात हो रही है. डिड आकांक्षा मैम यूज्ड टू कंडक्ट सेशंस? क्या आकांक्षा मैम सेशंस कंडक्ट किया करती थी? एक्शन आ गया. सपोज इफ यू वांट टू से क्या उसके पास बुलेट हुआ करती थी? When he was in school, जब वो स्कूल में था क्या उसके पास बुलेट हुआ करती थी? तो अब ये चीज कैसे पूछेंगे? Did he used to have? कोई चीज होना मतलब आपके पास होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? have. Did he used to have bullet when? Bullet, I mean to say bullet bike. I am not mean to say bullets which are used in pistols and your rifles. No. By bullet, I mean to say a bike. Did he used to have bullet when he was in school? Question mark. Did he used to have bullet when he was in school? जब वो स्कूल में था क्या उसके पास तब बुलेट बाइक हुआ करती थी? Did he used to have money before 2 years? क्या 2 साल पहले उसके पास पैसे हुआ करते थे? समटाइम्स व्हेन यू से जब आपको कभी गुस्सा आ जाता है या फाइट हो जाती है, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कहते हो 2 साल पहले तक क्या उसके पास पैसे हुआ करते थे? इफ यू वांट टू से दिस थिंग इन इंग्लिश, सो हाउ वुड यू से? डिड ही यूज्ड टू हैव मनी बिफोर 2 years? डिड ही यूज्ड टू हैव हिज ओन हाउस बिफोर 2 years और 1 year? क्या 2 साल पहले उसका खुद का घर हुआ करता था उसके पास? कुछ नहीं हुआ करता था. In this sense we use it. Now let's move to the another type of sentence which is known as WH family. WH family से meaning क्या होता है? Explanatory, in which we use these words why, where, who, whom, whose, how. इनसे जब आप क्वेश्चन करते हैं सो इनसे हम क्या पूछते हैं? एक्सप्लेनेशन में आपको आंसर मिलता है वापस. सो व्हाट इज द फॉर्मेशन फॉर दीज सेंटेंसेस? First, you have to place WH word. Then you have to place your helping verb. Then subject should be there again. क्योंकि हम past के बारे में बात कर रहे हैं तो used to को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलना है. जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आप 5 साल पहले कहाँ रहा करते थे? 5 साल पहले कहाँ रहा करते थे? आप कहाँ रहते थे? तो मैं इस चीज को कैसे पूछूंगी? Where did you used to stay or dwell before 1 year? 1 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आप कहाँ रहा करते थे? Where did you used to stay or dwell before 1 year? आप 1 साल पहले कहाँ रहा करते थे? How did you used to make that recipe? How did you used to make that dish? What's the recipe for that? आप कैसे बनाया करते थे या आपकी मदर कैसे बनाया करती थी? So what would you ask? You will ask like that. How did your mom used to make shahi paneer? How did your mom used to make shahi paneer? कैसे बनाया करती थी आपकी मदर शाही पनीर? या आपकी मदर कैसे आपको सपोर्ट किया करती थी? हाउ डिड योर मदर यूज टू सपोर्ट यू? सपोर्ट आपकी वर्ब आ गई. या आप कैसे इतने फिट रहा करते थे? हाउ डिड यू यूज टू बी सो फिट? कैसे रहा करते थे? आई हैव यूज्ड वेरी सिंपल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब टू मेक यू अंडरस्टैंड. मैंने बहुत सिंपल वर्ब एंड सब्जेक्ट्स यूज किए हैं आपको समझाने के लिए. बट यू विल नॉट यूज दीज सिंपल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग. समझने के बाद आप इनमें चेंजेस करने का ट्राई कीजिए. आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट वर्ब के साथ ट्राई टू मेक न्यू सेंटेंसेस एंड मेक श्योर
not to repeat your work, not to repeat subject. So what we have learned today, see, have a look. We learned that there is a difference between in past routine and daily routine. When you want to talk about your daily routine, you have to follow this formation. These are some examples of your daily routine. When it comes to past, you have, whenever you want to talk about your past habits, past activities which used to take place, जो पहले हुआ करती थी, now they don't take place anymore. अब नहीं होती हैं. उन एक्टिविटीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? used to. These are some examples. I used to play football. Then, and whenever you want to talk about any personality, then you have to place be. After that, when you want to make negative sentences, then you have to place did, because not कभी भी अकेला नहीं आता है. You have to place some helping verb with it. जब आप did place करेंगे तो आप used नहीं लगाएंगे. Then you will use first form only. Use. Then we learned about interrogative sentences in which we ask question. जब आप कोई question पूछते हैं किसी से. So yes no type में जब आपका आंसर आता है. So this is the formation. You can take a screenshot as well if you wish to. We learned about WH family. When you get answer in explanation form. So this is the whole concept is about used to. I hope you learned everything and try to frame new sentences by using different verb and different subject. This is Akansha Tomar signing off for today's video. I will come again with another video, and till that time, take care of yourself, enjoy your life, make some sentences, and I hope you found this video informative. Take care everyone.